नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। मोगा लुधियाना रोड पर तेज रफ्तार टिप्पर ने एक्टिवा सवार 2 लोगों को मारी टक्कर, एक की मौत, एक गंभीर घायल। हरियाणा के नूंह में मकान गिरने से दबा पूरा परिवार, 2 बच्चों की हुई मौत, 3 घायल। जालंधर कैंट स्थित दीप नगर में तेज रफ्तार कार ने एक्टिवा को मारी टक्कर, महिलाएं कई फीट हवा में उछली। और अब हलचल विस्तार से। मोगा लुधियाना रोड पर एक तेज रफ्तार टिप्पर ने एक्टिवा चालक को टक्कर मार दी, जिससे एक्टिवा पर सवार 2 लोगों में से एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वहीं घायल व्यक्ति को मोगा की समाज सेवा समिति की मदद से मोगा के सिविल अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती करवाया गया। इस दौरान मौके पर पुलिस प्रशासन ने पहुंचकर ट्रैफिक को खुलवाया और डेड बॉडी को मोगा के सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। तो वहीं जानकारी देते हुए मौके पर पहुंचे जांच अधिकारी मोहकम सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि मोगा की तरफ से आ रहे एक टिप्पर ने एक्टिवा को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मृतक की उम्र करीब 50 वर्ष और घायल की उम्र लगभग 30 वर्ष बताई जा रही है। वहीं टिप्पर चालक मौके से फरार हो गया। ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੇ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਕੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਕੂਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਟਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। 2 ਬੰਦੇ ਸੀ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨਾ ਭਲੌਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਦੱਸਦੇ ਕੋਈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਬੰਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਮੋਗਾ ਨੇ ਚੱਕੇ, ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ? ਇਹ ਚੌਂਕ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੱਧਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜਨਾ ਸੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਗੋਦੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਟਿੱਪਰ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗਰੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਇਹ ਮੁੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ। ਕਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ? ਇਹ ਸਕੂਟਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕ ਹੈ ਜੀ, ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕ ਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਿ ਟਿੱਪਰ ਦਾ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਿਹਦੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹਾਦਸਾ ਪਤਾ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਜੀਰਾ ਰੋਡ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਰ ਚੜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀ, ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ? ਇਹ 2 ਜਣੇ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਸੀ ਜੀ? ਉਹ ਹਨੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਡਾ, ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ? ਤੇ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੱਦਾਂ? ਦੂਸਰੇ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਤੇ ਮਾਰ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁਆਂਢ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਲੈ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਆਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਟਿੱਪਰ ਗਈ। ਚਾਲਕ? ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕ ਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਹਵੜਾ ਦਵੜੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਆਏ। ਕਾਠੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਇਆ। ਹਨੀ ਸਿੰਘ 28 ਸਾਲ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਦਸਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਹਾਦਸਾ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਲੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਏਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਮੂਹਰੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕੱਟੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈ? ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅੰਗ ਪੂਰਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਸਟ ਏਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਪੀ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਲੂਇਡ ਵਗੈਰਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦਾ ਤਰਾਜ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ? 28 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਉਮਰ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਕੁ ਸਾਲ ਸੀ।
हरियाणा के नूंह में गत देर रात एक मकान के गिरने से पूरा परिवार मलबे में दब गया। हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना नूंह जिला के पिनगवा खंड के गांव रीठठ की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव रीठठ के हाजी इकबाल के बेटे सलीम ने खेत में मकान बनाया था। वह अपने परिवार के साथ इस मकान में रहता था। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण मकान कमज़ोर हो गया था। रात करीब 1 बजे जब परिवार सो रहा था तब मकान की पिछली दीवार भरा कर गिर गई। मकान के पीछे एक खाली खेत था जिसमें 2 दिन पहले हुई बरसात के कारण पानी भरा हुआ था। दीवार के गिरने से 2 कमरों की छत टूटकर नीचे गिर गई। एक कमरे के अंदर सो रहा सलीम का पूरा परिवार दब गया। रात के समय इस हादसे की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को लगी वैसे ही मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई और बचाव कार्य में जुट गए। कड़ी मशक्कत के बाद दबे हुए 5 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया, जिनमें से 11 वर्षीय उमर और 7 वर्षीय नायरा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सलीम, उसकी पत्नी और एक 5 वर्ष का लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों को नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जहां से 5 वर्ष के लड़के की हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। देखो जी, कानून जो है इसमें किसी और के किसी के हाथ तो है ना, ये कुदरत की तरफ से हुआ है और सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि जी जो उनका नुकसान हुआ है उसको थोड़ा सोचे समझे अपने नुकसान दिया जाए थोड़ा बहुत। मकान भी ढह गया, 2 बच्चों की मौत भी हो गई, 3 बच्चे दाखिल भी हैं हॉस्पिटलों में। यही है, इसको सरकार अपनी तरफ से जो मदद हो सकती है वो करे। भाई हम तो यहाँ सोए पड़े, रात के 1 बजे अचानक मकान गिरो। 5 बच्चे यहाँ भीतर है, 4 बाहर है, 2 उनका इंतकाल हो, 3 भाई हॉस्पिटल में। किसका ये मकान था? सलीम का मकान है। आपके बेटे का? हाँ जी, मेरे बेटे का। अब कैसी हालत है बच्चों की? एक से दिल्ली रेफर कर रखो जी, 2 ही नल्हड़ में। क्या किसी की डेथ भी इसमें हुई है? हाँ, 2 बार की हुई है जी। क्या क्या नाम है? एक उमर है जी, एक नायरा। हादसे की कोई वजह पता चली है? वैसी वजह कुछ ना है, बारिश की वजह से मकान वो से हो रहे ढीले, अचानक गिर पड़े। कितना नुकसान इसमें हुआ है? जी मकान के तब हम लगते पता ना कितना हुआ, सारे सामान टूट गए जी और मकान गिर पड़ा। जालंधर कैंट स्थित दीपनगर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक तेज रफ्तार कार ने एक एक्टिवा सवार को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि 2 महिलाएं कई फीट हवा में उछलकर सड़क पर गिर गई। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हादसे में दोनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनमें से एक के सिर से तेज खून बहने लगा। स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया और आरोपी युवक को मौके पर ही पकड़ लिया गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई और मामले की जांच शुरू कर दी गई। एक्टिवा सवार 2 महिलाएं दीपनगर की ओर से आ रही थी। उसी दौरान सामने से आ रही एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित वर्ना कार ने उन्हें सीधी टक्कर मार दी। टक्कर के बाद एक्टिवा चकनाचूर हो गई और महिलाएं सड़क पर गिर गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने चालक को पकड़ लिया और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि आरोपी युवक की कार पीछे से बेकाबू होकर जा रही है, तभी अचानक उसकी बगल से आ रही एक्टिवा से टक्कर हो जाती है। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बलुआड़ा क्षेत्र के अधीन आते गांव धरांग वाला में गत रात्रि फूड पॉइजनिंग के चलते एक ही परिवार के 4 सदस्य बेहोश हो गए, जिन्हें आसपास के लोगों ने अबोहर के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर 2 की हालत गंभीर बनी हुई है जबकि 2 स्थिर है। फिलहाल सभी का इलाज चल रहा है। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ?
घरान वाला हो गया तो रात में सब्जी रोटी खा के सोए बेसन की बड़ियाशी बना के वजह से सुबह उठान लगे उदों भी उठे नहीं गए सदा उठ कर दिए दिन का उठे डाको नहीं आता और गुड्डी आई डी सही दारी माँ कुदरती मिलन गई माँ के ना जना अगर उठे डाको ये 4 जना पढ़ दे हाँ नानू उल्टी तो सुबह आई उल्टी फिर नींबू नंबू दियो टिकट डॉक्टर ने बुलाया टिकट आता लगवाया इंसाफ शर्मा जी सिविल हॉस्पिटल बोर्ड एमरजेंसी ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ 4 ਧਰਾਂਗ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਸੈਂਪਲ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਐਸੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਣਾ ਸਦਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਰੁਕਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਧਰੰਗ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਦ ਰਾਮ ਪੁੱਤਰ ਗੰਗਾ ਜਲ ਰਾਣੀ ਪਤਨੀ ਗੰਗਾ ਜਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਨ ਬੱਚੇ ਪੂਜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਮਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੇਸਣ ਗੱਟਾ ਘਰ ਰਾਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਖਾਣੇ 'ਚ ਉਹ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਹਾਸਲ करके अगली कार्रवाई कराएंगे। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सड़क हादसा हो गया जिसमें जम्मू कश्मीर के 2 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी के बाद श्रीनगर से जम्मू जा रहे 3 सब इंस्पेक्टर शहर के लाजसन इलाके के टेंगन में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे जिसके बाद घायल पुलिस अधिकारियों को अस्पताल ले जाया गया जहां 2 को मृत घोषित किया गया जबकि एक की हालत गंभीर है उसे इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मृतक पुलिस अधिकारियों की पहचान सचिन वर्मा और शुभम के रूप में हुई है जबकि घायल पुलिस अधिकारी की पहचान मस्तान सिंह के रूप में हुई है। मस्तान सिंह का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। पोस्टमार्टम के बाद दोनों मृतक जवानों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। 4 साल हुए हैं उसकी शादी हुई तो 2.5-3 साल का उसका बच्चा है छोटा सा। तो थोड़ी देर पहले ही उसने उसके बेचारे अपने लड़के के मुंडन करवाए अपने हाथों से तो 3-4 महीने हो गए हैं लेकिन बेचारे के साथ ये ऐसा कोई हादसा हो गया है। हमें तो इसकी जानकारी नहीं है कि कैसे हुआ है लेकिन शराब के वक्त हुआ है क्या हुआ उसके साथ सुनने में ये आया है कि किसी गाड़ी ने हिट किया है। तो अभी इसके बारे में तो हम पूरा नहीं जान सकते भाई क्या वारदात है लेकिन अभी किसी कैमरा दुकान के बाहर कहीं कैमरा लगा हो या कुछ ऐसे CCTV कैमरे से पता चल सकता है। बाकी तो पोस्टिंग के बारे में तो मुझे नहीं पता है शायद इसकी पता नहीं उधर ड्यूटी लगी थी या क्या है। हाँ तो अब तो बेचारे की सुनने में ये आया था कि पोस्टिंग जम्मू में हो चुकी थी कहीं लेकिन अभी पता नहीं अमरनाथ की ड्यूटी पे था या इसका तो नहीं। बहुत अच्छा लड़का बहुत अच्छा लड़का। मैं रात को लेडी आता हूँ 10-11 बजे आता हूँ तो छोटा भाई है मम्मी डैडी वाइफ एक छोटा बच्चा 3 साल का। कोई पता नहीं सुबह ही पता लगा मेरे को न्यूज़ चैनल से पता लगा उनके घर से कोई एक्सीडेंट हो गया उसके बाद नेचर सबके साथ मोहल्ले में अच्छा बोलना चालना हाई हेलो सबके साथ अच्छा बहुत अच्छा नेचर। मेरे इतना भी पता नहीं मेरे पड़ोसी हैं मेरे मैं एक्चुअली रात को लेडी ऑफिस से आता हूँ मेरे इतनी मुलाकात होती नहीं लेकिन नेचर में बहुत अच्छा है। अभी आज से ना कल परसों आना तो पता नहीं जम्मू में आना छुट्टी पे आगा ट्रांसफर होना उसकी मम्मी है डैडी है छोटा भाई है उनकी भाई बच्चे एक 3 साल का बच्चा लड़का है। पानीपत के सेक्टर 29 स्थित हैंडलूम फैक्ट्री में सोमवार तड़कसार भीषण आग लग गई। उद्योग परिसर रविवार रात से बंद था। सोमवार की सुबह चौकीदार ने आग लगने की सूचना मालिक को दी साथ ही दमकल को भी सूचित किया गया। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। 10 गाड़ियों ने आग बुझाने के लिए कई चक्कर लगाए लेकिन आग भीषण होने के चलते उस पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस फैक्ट्री में दरी एवं बाथ मैट बनाए जाते थे। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल इस आगजनी से फैक्ट्री में करोड़ों रुपयों का नुकसान होने का अनुमान
लगाया जा रहा है। गौ रक्षा दल पंजाब ने जंडियाला गुरु में बूचड़ खाने से गऊओं की तस्करी कर ले जाया जा रहा गऊओं से भरा एक ट्रक बरामद किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए गौ रक्षा दल पंजाब के उप प्रधान जय गोपाल लाली ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि अजनाला से गऊओं से भरा एक ट्रक तस्करी कर आसाम ले जाया जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने अपने दल के बाकी सदस्यों सहित ट्रक का पीछा किया। इस दौरान ड्राइवर ने ट्रक को भगा लिया, लेकिन उन्होंने अपने दल और पुलिस की मुस्तैदी से ट्रक को जंडियाला गुरु में घेर लिया। उन्होंने बताया कि ट्रक में गऊएं भर भर कर बांधी हुई थी और उनके ऊपर तिरपाल लगाकर पर्दा किया गया था, जिस कारण गऊओं को अंदर हवा भी नहीं आ रही थी और वे प्यास से बेहाल थी। जिसके बाद जंडियाला गुरु पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। सानू अज गुप्त सूचना मिली थी कि इस ट्रक दे विच गऊ वंश नूं कट्टण दे लई पंजाब तो श्री अमृतसर तो आसाम ले जाया जा रहा और असी अपने सोर्स के मुताबिक नाका लगाया और पुलिस नूं इन्फॉर्म किया। जदों असी ये ट्रक नूं रोकण लई हथ दिता ते इहने ट्रक भजाउण दी कोशिश की ते साडे ड्राइवर दी ते पुलिस दी सूझ-बूझ नाल असी अग्गों दी नाका ला के गड्डियां अगे ला के ते इस ट्रक नूं रोक लिया। 4 बंदे सी ट्रक विच, मालक भज गया विचों ते ड्राइवर ते 2 ड्राइवर ते 1 कलिंदर वो साडे हथ आ गया जी। वो फड़ के असी पुलिस नूं हैंडओवर करता। ये सर लैके आए जी अजनाले तो। अजनाले दे विच कोई मतलब कि साबी नां दा बंदा जिहड़ा गऊ की तस्करी करदा, वो ते अगे भी परचे आ, काफ़ी परचे आ साडे कोल, कापियां आ रही हैं। एक पानीपत भी वो परचा हो रही, पंजाब 1-2 परचे हैगे आ। ਉਹਦਾ काम ही यही है जी, नकली कागज़ बना के ते पंजाब तो अमृतसर तो गऊआं आसाम कलकत्ते दूसरे प्रदेशों में भेजदा, जद कि दूसरे प्रदेशों में असी गऊ भेज नहीं सकते। और गाइयां देखो जी, 22 गाइयां ढूस के भरियां हुई, ना अंदर कोई चारा है ना पानी का प्रबंध है। और ये कहता है जी एक कागज़ बनाया जी दुध की गाइयां। और तुहाडे पत्रकारां दे माध्यम नाल मैं दसना चाहना कि जिहड़ियां दुध की गाइयां होंदियां ना, ਉਹਦਾ एक प्रोसैस हुंदा। पहली गल तो ढूस के ही भर नहीं सकते, क्योंकि एक कलूल्टी एक्ट के अंदर आंदा किसी नूं जबरन मतलब लंदिया बंधक बना के रखना, एक कलूल्टी एक्ट के अंदर आंदा, वो भी असीं करावांगे जी। गौ रक्षा दल पंजाब के प्रधान जयपाल जी ने सूचित किया सी। उन्होंने सूचना मिली ਸੀ भी अजनाला साइड तो एक ट्रक है, वो 20-22 के करीब गावां वा वो बन के आउट ऑफ स्टेट लैके जा रहे हैं। उन्होंने पिछा किया, इत्थे साडी पुलिस नूं इन्फॉर्म किया तो टोल प्लाजा निजरपुरा जिहड़ा उन्होंने रोकिया गया। वो करीब 20 तो 22 के करीब गाइयां ने जी, तो वो राउंड अप कर ले गए ने। इन्हां को जो इन्हां दी स्टेटमेंट मुताबक जो एज पर रूल असी कानून मुताबक कार्रवाई करके FIR दर्ज कर रहे हैं। ये 3 बंदे हुण तक जिहड़े अरेस्ट किए ने। एक तो हैगा जी ये ट्रक का मालक है मनदीप सिंह, गुजरपुरा अजनाले पिंड है जी। दूसरा हैगा अमरवीर सिंह, वो ड्राइवर आ, वो भी गुजरपुरा अजनाला। तो तीसरा रणजीत सिंह है, पुत्र मनजीत सिंह गुजरपुरा। जिहड़ा इन्हां दा मेन संचालक या जो इस चीज़ नूं इस धंधे नूं गलत धंधे नूं अंजाम दिंदा सी, वो साहब सिंह है, पुत्र मनजीत सिंह गुजरपुरा। उधर भी साडियां टीमां गईयां ने जी, उन्होंने भी जल्द गिरफ्तार करके कानूनी सकंजे च लिआवांगे। वो 20 के करीब ने, हुण बाकी 20 तो 22 के दरम्यान ने, तो देख रहे हैं जी। फिलहाल हुण ही राउंड अप किए ने, पुछगिछ चलदी है जी। असीं इन्हां नूं बरीकी नाल थोरोली वैरीफाई करांगे ते जिहड़ा हैगा वा पहिलां भी अजिहे किन्ने के इहो जिहा घटनाक्रम कर चुके ने, वो सारा तय तक जावांगे। फिलहाल इन्हां दे दस्सण मुताबक आसाम लैके जा रहे सी, उत्थे कौन खरीददा, इत्थे कौन सेल करता, पंजाब च जी होर कित्थे कित्थे चीज़ हो रही है, वो सारा वेरीफाई। तुर्की में रविवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.1 मैग्नीट्यूड थी और झटकों ने इमारतों की नींव हिला दी। भूकंप का केंद्र तो सिंदीरगी में था, लेकिन इससे 200 किलोमीटर दूर इस्तांबुल तक
झटके महसूस किए गए। तुर्की के उत्तर पश्चिमी प्रांत बालिकेसिर में रविवार को 6.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे करीब 1 दर्जन इमारतें ढह गईं। भूकंप का केंद्र सिंदीरगी था और इसके झटके लगभग 200 किलोमीटर दूर इस्तांबुल शहर तक महसूस किए गए, जहां की आबादी 1.6 करोड़ से अधिक है। भूकंप के चलते 81 वर्ष की एक महिला की मौत हो गई, तो वहीं 16 बिल्डिंगें गिर गई हैं और 29 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। बचावकर्मी इमारतों में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पास के गोलकुक गांव में भी कई घर ढह गए। गांव में एक मस्जिद की मीनार भी गिर गई। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान राजा वड़िंग अमृतसर पहुंचे, जहां प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि गत दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने पत्रकारों के समक्ष देश के संविधान की धज्जियां उड़ाने के मामले पर बात की थी और सारी सच्चाई दुनिया के सामने रखी थी। उन्होंने कहा कि अगर इस बार भाजपा को 400 से अधिक सीटें मिल जाती हैं तो हालात और भी खराब हो जाएंगी। वहीं उन्होंने कहा कि डुप्लीकेट वोट बनाने वाली ये डुप्लीकेट सरकार है। इस अवसर पर गुरजीत सिंह औजला सहित पूरी पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी की टीम भी उपस्थित रही। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਅਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਕਿਹਾ ਈਵੀਐਮ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਵ ਨਾਟ ਸੈਡ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਸਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਈ ਆਰੋਪ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। छत्तीसगढ़ चला गया, हरियाणा चला गया, महाराष्ट्र चला गया, मध्य प्रदेश चला गया, लेकिन चुप करके बैठा रहा। इस बारी पार्लियामेंट साडी सरकार चली गई, लेकिन राहुल गांधी ने प्रूफ लैके प्रूफां दे आधार पे अपनी प्रेजेंटेशन दे के दसिया कि वोट चोरी हो रही है। ईवीएम ते भी साडा काम चल रहा है। जो साडे कोले पुख्ता सबूत मिल जाएंगे, क्योंकि जिहड़ा दुश्मन है वो चतुर ते चलाक बड़ा है, शातिर बड़ा है। जल्दी जल्दी पकड़ असी 11 सालों तो पकड़ना चाहते हैं। 11 साल बाद हुण साडी पकड़ दे विच एक असी सेंट्रल सीट दे सबूत लिया के दिते हैं। ते परमात्मा कृपा करेगा। कहंदे है कदे आप दियां कदे बाप दियां, सच्चे पातशाह सदा तां कृपा नहीं मैं रखदा। कितना चिर चोरी चलेगी? सो जल्द अगर सानू ओरे ते भी साडा काम चल रहा है। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਵੀਐਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ? ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਵਨ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਐਸਆਈਆਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਆਗਾਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਆਗਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ बेस्ट रेमेडी हैगी आ, फिर ਅਸੀਂ सुप्रीम कोर्ट ਤੇ हाई कोर्ट भी जा सकांगे। अमृतसर वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि अब अमृतसर से कटड़ा के लिए भी वंदे भारत ट्रेन चलेगी। इससे पहले अमृतसर को दिल्ली से वंदे भारत की सुविधा मिल चुकी है। लोगों की ये लंबे समय से मांग थी कि दिल्ली अमृतसर के साथ साथ अमृतसर कटड़ा रोड पर भी वंदे भारत या एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाए, जो कि अब उन्हें मिल चुकी है। इस अवसर पर भाजपा के नए राज्य कार्यकारिणी प्रधान अश्विनी शर्मा, जो खुद इस रेलगाड़ी में यात्रा कर यहां पहुंचे हैं, इस दौरान उन्होंने कहा कि माता वैष्णो देवी दरबार के लिए वंदे भारत रेलगाड़ी शहीदों की धरती अमृतसर से 4:30 बजे शुरू होगी, जो कि देर रात कटड़ा पहुंचेगी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस रेलगाड़ी के माध्यम से मां वैष्णो देवी दरबार जाने वाले श्रद्धालुओं में बहुत उत्साह होगा। इस अवसर पर सांसद गुरजीत सिंह औजला सहित कई वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट।
दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का समूचे पंजाबियों वालों कोट-कोट धन्यवाद है। ये कटरा तो श्री अमृतसर साहिब के लिए वंदे भारत अज तो चली है और श्री अमृतसर का नाम आंदे ही श्री गोल्डन टेंपल, दुर्गियाना मंदिर, जलियांवाला बाग, बाघा बॉर्डर और वाल्मीकि महाराज जी का तीर्थ स्थान ये दिमाग से आता है। और कटरा का नाम आंदे ही मां वैष्णो देवी जी का ध्यान सारा जाता है। ये दो दिलों का जोड़ है, एक कली ट्रेन नहीं है, ये दो दिलों का जोड़ है। अमृतसर पंजाबियों के लिए धार्मिक राजधानी है, सांस्कृतिक राजधानी है और जिसे धार्मिक राजधानी है उसे श्री जलियांवाला बाग बलिदान की भूमि है, श्री वाल्मीकि तीर्थ बाघा बॉर्डर शहीदां दे शोरे का प्रतीक है। इस करके ये मोदी जी ने पंजाबियों को एक जड़ा तोहफा दिता है। इहदे नाल अमृतसर के अंदर तीर्थ यात्री और पर्यटक जड़े ने उन्हां दी गिनती च बढ़ोतरी होएगी और कटरा दे नाल जुड़न दे कारण कटरा के श्रद्धालु अमृतसर और अमृतसर आके कटरा जाने वाले श्रद्धालुओं की और पर्यटकों की गिनती जी बढ़ोतरी होगी। इसलिए मैं समूचे पंजाबियों वालों देश के प्रधानमंत्री जी का, देश के रेलवे मिनिस्टर जी का, देश के राज्य रेलवे मिनिस्टर बहुत खुशी की गल है ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ वास्ते। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ टू कटड़ा वंदे भारत ट्रेन जी चल रही है और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਰਕਟ ਵੀ ਹੈ, ਟੂਰਿਸਟ ਸਰਕਟ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ। ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨਸ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਟੜਾ, ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਟੜਾ ਤੱਕ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਟੜਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਲ ਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦਾ ਵੀ, MS ਦਾ ਵੀ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਟੂਰਿਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, होटल इंडस्ट्री है, चाहे रिक्शा है, चाहे ई रिक्शा है, ढाबाज ने, शॉप्स ने, फूड इंडस्ट्री है, उन्होंने बहुत बड़ा लाभ है। अभी बॉर्डर के उत्ते साडे कोल होर कुछ बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर नहीं है, टूरिस्ट हब है, गुरु महाराज की नगरी है। सो इस करके बहुत लखां लोग इत्थे आउंदे ने। जिन्ना असीं इहनूं फैसिलिटेट कर दांगे उन्ना ही वधिया होएगा। बहुत अच्छी ट्रेन है जी, बाकी ट्रेन है, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, अमृतसर के लिए बहुत खुशी की बात है। जो अमृतसर लोग यात्री मौका देने जाएंगे, वैसे गाड़ी कोई नहीं थी और ऐसा कि मोदी साहब ने स्पेशल ट्रेन चलाई है, इसके लिए बहुत खुशी की बात है। ये अमृतसर से चलेगी, कटरा से अमृतसर है, ये मंगलवार को छोड़ के। हाँ जी, इसको पहले बहुत गाड़ियाँ चलाई हैं, या बहुत सारी स्पेशल ट्रेन दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे पीछे आया ड्राइवर के हाथ में लोगों की बिल्कुल रेल हमेशा ट्रेन को सेफ्टी से चला रही है अमृतसर कटरा और बहुत अच्छे बरनाला की आवा बस्ती में सीवरेज की समस्या पिछले 4 महीनों से बदस्तूर जारी है। सीवरेज का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर जमा हो चुका है, जिस कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे दुखी होकर लोगों ने सीवरेज विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रोड जाम कर पक्का मोर्चा लगा दिया। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा कई बार अधिकारियों को इस समस्या संबंधी सूचित किया गया है, लेकिन किसी ने भी उनकी समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिस कारण वे मजबूर होकर रोड जाम कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी समस्या का पूर्ण हल नहीं किया जाता, तब तक वे अपना
धरना नहीं उठाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ जेई अजय कुमार ने कहा कि जल्द ही इस समस्या का हल कर दिया जाएगा, क्योंकि कर्मचारियों की हड़ताल होने के कारण ये समस्या आ रही है। इस रिगार्डिंग आही कहना चाਹੁੰਦੇ ਹਾਂ जी, ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਵਰ ਮਹਿਨਾ ਵੱਲੋਂ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਆਪ ਦੇ ਜੋ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ। ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ, ਇੰਜਨ ਹੋ ਗਏ, ਰੋਡਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨੇ? ਰੈਗੂਲਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਊ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ? ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਆ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਪੱਖੇ ਏਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਟੇਲ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਸਟ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ उस कमरे 'ਚ पहुंचे थे। गुग्गा पीर वेलफेयर सोसाइटी रेलवे फाटक अड्डा होशियारपुर की तरफ से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ज़रूरतमंद गरीब लड़कियों के 15वें सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन 18 अगस्त दिन सोमवार को प्रातः 11 बजे अड्डा होशियारपुर चौक फाटक नज़दीक किया जा रहा है, जबकि 17 अगस्त को गुग्गा 9वीं मेला अड्डा होशियारपुर चौक नज़दीक धूमधाम से मनाया जाएगा। इस होने वाले समारोह को लेकर सोसाइटी की तरफ से तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। समारोह में शहरवासियों और गणमान्यों को आमंत्रित करने के लिए निमंत्रण देने की शुरुआत सोसाइटी की तरफ से की गई, जिसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जालंधर सेंट्रल से क्षेत्र इंचार्ज नितिन कोहली, मॉडल टाउन मोबाइल मार्केट एसोसिएशन के प्रधान राजीव दुग्गल, पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, बाड़ी बीबी राम प्यारी मंदिर श्री सिद्ध बाबा, बालकनाथ फगवाड़ा गेट के चेयरमैन पवन भल्ला, प्रधान प्रद्युम्न सिंह, कैशियर राजेश कोहली, राजधानी इलेक्ट्रिक्स के मालिक गुलशन मलिक को, सोसाइटी के प्रधान राजेंद्र पाल वर्मा, महासचिव मक्खन सिंह, अमित सोनी, कुणाल कक्कड़, संस्कृत मल्होत्रा ने निमंत्रण भेंट किए। तैयारियों संबंधी जानकारी देते हुए सोसाइटी के सदस्यों ने बताया कि पहले भी सोसाइटी 135 से ज़्यादा लड़कियों की शादियां करवा चुकी हैं। हर बार की तरह इस बार भी नव विवाहित जोड़ों को घरेलू ज़रूरत संबंधी सारा सामान दिया जाएगा और शादी की सारी रस्में विधिवत ढंग से अदा की जाएंगी। इस अवसर पर प्रधान राजेंद्र पाल वर्मा, महासचिव मक्खन सिंह, वाइस प्रेसिडेंट सुनील मदान, खजांची सतीश मल्होत्रा, वाइस चेयरमैन जीवन कुमार हैप्पी, एडवाइज़र एसके कपूर, वरिंदर कपूर, निपुण भंडारी, विवेक मल्होत्रा, कुलदीप भाटिया, सीए ज्योतिंदर मलिक, दिलीप कुमार, नवीन सेठ, दलजीत सिंह भाटिया, पृथ्वीपाल सिंह भाटिया भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जिवें तुसीं जाणदे हो, हर साल की तरह इस साल भी असीं जो ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡਾ 18 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 14 ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ 'ਚ ਅਤੇ ਕਰਨ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 1-2 ਵਾਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲਵਾਉਣ ਲਈ, ਟੀਵੀਆਂ 'ਚ ਲਵਾਉਣ ਲਈ,
ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅੱਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚੌਂਕ, ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨੇ ਭਾਈ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੰਭਾਲਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਖੀਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਔਰ ਲੰਗਰ ਦੇ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ VIPs ਇੱਧਰ ਖਾਣਗੇ, ਉੱਧਰ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰਕੇ ਆਪ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਾਕਮਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਮੰਤਰਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈਦਾ ਆ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇ ਸਿਰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਾਉਣਾ ਆ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। परमात्मा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ हमेशा। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन प्रांगण में स्थित ट्रस्ट महाकाली मंदिर में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक रमेश जलंधरी एंड पार्टी ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की। इस अवसर पर मंदिर कमेटी के सदस्य योगेश्वर शर्मा, अशोक सोबती, दिनेश सागर, अशोक शीतल ने भजन गायक को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर ट्रस्ट महाकाली मंदिर प्रधान अश्विनी मिंटा, चंद्रमोहन डिंगरा, संजीव साहनी, गोवर्धन गोंधी, नरेंद्र शर्मा, सोहन लाल साथी, किरण कुमार, नीटू आर्य, जवाहर पुजारी, ब्रिज प्रभाकर, सुरेंद्र कपूर, राजेश शर्मा सहित असंख्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट।
शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक पप्पी चंचल एंड पार्टी ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद भजन गायकों ने मां के सुंदर भेंटों का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस अवसर पर मंच संचालक मास्टर हरिचंद शिव सहगल अवतार सिंह ने गायकों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर दविंदर अरोड़ा, राकेश कुमार, पंडित रवि, जंग बहादुर, परमजीत ढल्ला, दीपक ढिंगरा, वरिंदर शांत, नीटू, सुदेश सोनी, कपिल सहगल, दमन मेहता भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। मोगा लुधियाना रोड पर तेज रफ्तार टिप्पर ने एक्टिवा सवार 2 लोगों को मारी टक्कर, एक की मौत, एक गंभीर घायल। हरियाणा के नूंह में मकान गिरने से दबा पूरा परिवार, 2 बच्चों की हुई मौत, 3 घायल। जालंधर कैंट स्थित दीप नगर में तेज रफ्तार कार ने एक्टिवा को मारी टक्कर, महिलाएं कई फीट हवा में उछली। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।